Let's all look towards Him. Thank you, Father. Thank you for this day, Lord. We worship you, Father. We give you all the praise, all the honor, all the glory, Lord. There's none like you. Teach us to walk in your ways, Father. Thank you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. We thank you, Lord. There's none like you. You are holy. You are holy, Lord. You are above everything. You reign, Father. You reign, Lord. We bow ourselves before you, Lord. You increase, we decrease, Father. We have come here to worship you, Lord. We love you, Lord. We love you, Father. Thank you for giving us this new day to worship you. We lift our voices to you, Lord. There's none like you, Lord. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against us. Oh, our Father in heaven, lead us not into temptation. God, deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever.
glory forever, Lord. We love you, Lord. We worship you, Father. You lead us and we will follow, Lord. Thank you, Lord. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Thank you, Lord. Yours is the kingdom. You reign, Father. You reign, Lord. We love you, Lord. There's none like you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above
took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you, Father. Thank you for your thoughts for us, Lord. Thank you for your plans, Lord. Thank you for you have beautiful plans for us, Lord. We thank you, Lord. Thank you for you think about us, Lord. We thank you for you care for us, Lord. We thank you for you protect us, Father. We thank you. You are our refuge, Lord. You are our strength. You are our hiding place, Lord. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected,
Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Thank you, Father. You are worthy, you are worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord. You are worthy. Worthy you were. Worthy you were. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you were. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Let's all sing worthy. Oh, worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. Oh, worthy you will be forever, Yahweh. Worthy you are. Worthy you are. Worthy you will be forever, Yahweh. You are worthy, God. You are holy. You are worthy forever. Forever. Thank you, Father. You are worthy of everything, Father. You are worthy, Lord. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. You are worthy of all worship, all honor, all praise, all glory to you alone, Lord. You are worthy of it all, Lord. We give everything to you, Lord. We give our voice. Our life is in your hands, Lord. You use us the way you want, Lord. Thank you, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy. No one but you, Lord. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Let it be a sweet sound in your ear, Lord. Help us to be a living sacrifice for you, Lord. We bless you, Father. We thank you for you are here. We thank you for your presence. We thank you for you dwell among us, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Thank
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। हाँ प्रभु, तेरे बिना कोई भी बात सृजी नहीं गई और सब कुछ तुझ में सृजा गया। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ परमेश्वर, आज जो यहाँ पर आए सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। जो आज तुझसे मांग रहा है खुदा, तू तेरे वचन के अनुसार कर। जो उम्मीद लगा के तेरे पास खटखटा रहा है और तू उसके लिए आज दरवाजा खोलेगा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू उत्तम परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू हृदयों को जांचने वाला खुदा है और तू मनों को परखने वाला खुदा है। और सच में हमारे अंदर कोई बात आ जाती और तू उसे देखता है, तू उसे सुनता है और परमेश्वर तू नियुक्त समय में वो चीज को करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, जो कोई यहाँ पर बीमार है उसे तू चंगाई दे। ओ खुदावन, हाँ कोड़े खाने से हम चंगे हुए और जो कलवरी क्रूस पर तूने हमारे लिए वो दाम चुकाया, वो सच में वो हमारे लिए ही था। वो जो हमारे पापों के लिए जो तूने क्रूस पर जान दी, वो सब कुछ उसने तूने पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी बात रखी नहीं गई, वो कोई भी एक चीज की रखी नहीं गई जो हमें पूरा करना पड़े, पर सब कुछ तूने ही पूरा किया खुदा। और हमें तूने परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए ओ धन्यवाद अनुग्रह दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, तेरे वचन बहुत ही अद्भुत हैं जो हमारे जीवन में काम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, तेरा वचन हमारे लिए दीपक है और मार्ग में उजियाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हम भटक जाते हैं तो तेरा वचन हमें सीधे रास्ते पे ले आता है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ तेरे सोटे हमें शांति देते हैं। जिस बेटे से पिता प्यार करता है वो उसे करेक्ट भी करता। और तू आज इस कलीसिया में हर एक को अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, तेरे वचनों के द्वारा खड़ा किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे सामने आए और तुझसे प्रार्थना करें और तेरी महिमा करने के लिए अपने मुखों को खोलें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावन, आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे की वचन की विधि हम हाथों में सौंपते हैं। पिता, तेरे वचन के द्वारा हमें बातें कर पिता, और तेरे दास दासी पर तेरा अनुग्रह बोलते हैं, तेरा महान अभिषेक उतरने के लिए बोलते हैं कि खुदा तू बात कर और वचन के द्वारा आज जीवन में एक बेदारी आने दे खुदा, और सब बदल जाए खुदा। वो पहले जैसा ना रहे परंतु एक नया सा जीवन हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं, सुने पिता। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत है, जिसने हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हम जीवित हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए, ये समय है प्रभु को धन्यवाद देना है। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु महान है। मेरी मम्मी के लिए गवाही है। मेरी मम्मी के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किए है। प्रभु महान है और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अंकल को मैंने बोला था मम्मी की आंखों के लिए प्रेयर करने को, और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। मैंने भी प्रार्थना किया और मम्मी को बोला कि तू डॉक्टर पे मत भरोसा रख, परमेश्वर पे भरोसा रख। उसने तुझे आंखें दी है, शरीर का हर एक हिस्सा परमेश्वर ने दिया है, तुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी बोली नहीं, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। मैंने बोला वो डॉक्टर ने बोला है, परमेश्वर ने नहीं बोला है तुझे। परमेश्वर ने तुझे जो दिया है वो परमेश्वर ने दिया है, तुझे दूसरों की आंखों की जरूरत नहीं है। तो प्रार्थना किया और यूट्यूब पे मैं रोज मम्मी को प्रार्थना सुनाती थी आंखों के लिए, और प्रभु ने प्रार्थना सुनी और मम्मी चेकअप के लिए गई दवाखाने में। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन कैंसिल हुआ है आंटी, आपका आंख अभी एकदम अच्छा हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महान है और असंभव को संभव करने वाला खुदा सच में महान है खुदा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत अच्छा है
और उसका वचन कहता है कि वो आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साधना ने विश्वास किया, उनकी मम्मी ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो वचन कितना यहाँ पे जो वचन जैसे बोलता है कि वो कान लगाकर हमें सुनता है, वो न कभी सोता है न कभी झपकी लेता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे संग रहता है, तो हम क्यों घबराएं। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, सारा गौरव सारी महिमा उसी को देते। धन्यवाद करते परमेश्वर। तू वायदों को पूरा करता है परमेश्वर। यस लॉर्ड। तू हमारे संग है परमेश्वर। तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा छुपने का स्थान है। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, जिसके सामने बिजली भी शर्मा जाती है और जिसके सामने वो गरजते हुए बादल झुक जाते हैं, जिसके सामने सागर नमन करने लगता है और जिसके ऊपर पैर रखने से वो कांप उठता है। ऐसा सागर तूने रचा है परमेश्वर। तू रचयिता है और हम तेरी रचना है परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। और हमारे अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं जब हम तेरी स्तुति करते हैं। तू स्तुति के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है। तू अति महान अति पवित्र परमेश्वर है। तू सर्वोच्च परमेश्वर है। ओ तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ओ तू हमारे साथ है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं साधना के मम्मी के ऑपरेशन को तूने कैंसिल किया, उसके दृष्टि को तूने चंगा किया खुदा। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने ओरेकल के लिए हर बातों को हिला दिया परमेश्वर और रूल्स को बदल दिया खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे बच्चे के लिए तू कुछ भी कर सकता है खुदा। आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं दी हुई सारी प्रार्थनाओं के लिए और तूने हितेश के लिए किया है, हम धन्यवाद करते हैं। तूने परमेश्वर जो नंदा सिस्टर ने प्रार्थना मांगी वो पूरा किया, हम धन्यवाद करते खुदा। और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हम तेरे सामने झुकते हैं। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है खुदा। ओ तेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया कि तू हमारे लिए कर नहीं सके। आज हम सब तेरे सामने झुकते हैं, नमन करते हैं खुदा। तू महान है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम तेरे किए हुए बड़े बड़े कामों के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें सर से पैरों तले परमेश्वर चंगाई दी है, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए। हमारे अंदर हर एक रक्त की बीमारियों को तूने चंगा किया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ उसके पसली में बाला बोका गया कि हमारी पसली हमारी रिब्स चंगी हो जाए। ओ उसके सर पर मुकुट रखा गया कि हर सर की बीमारियां निकल जाए। ओ उसके हर एक ऑर्गन को तूने तोड़ा कि हमारे ऑर्गन्स चंगे हो जाए, कि हमारी बॉडी जुड़ जाए, हमारी हड्डियां जुड़ जाए, हमारे अंदर नया काम शुरू हो। हम धन्यवाद करते परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए क्रूसित हुआ, जो पाप जानता नहीं था वो खुद पाप बन गया सिर्फ हमारे लिए, कि हम पर आई हुई सजा जो हम सह नहीं सकते वो उठा ले। आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर, सारी महिमा करते हैं तेरे आए हुए हर बच्चे के ऊपर, तेरे अभिषेक को मांगते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से करते हुए आगे का पूरा समय तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन ले पिता, आमीन। लिखा है कि प्रभु के घर में कोई कमी नहीं होगी, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, दबाकर हिलाकर उमड़ता हुआ। क्यों देना है? कि प्रभु के घर में कोई घटी नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। ऐसा वचन सुना है ना? बाइबल में ही है ना, बाइबल से बाहर है क्या? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये मैं बहुत बार प्रेयर करती और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना करना?
प्रभु के घर में जो आपने दिया है वो दबाकर, प्रेस डाउन, हिलाकर, शेकन और उमड़ता हुआ, बहते हुए आपको लौटा कर देगा। कैसे लौटा कर देगा मालूम है? हमने बहुत बार बोला है 30, 60 और 100 गुना। मतलब कैसा देगा मालूम है? 100 गुना काट लेंगे, फिर भी 60 गुना फिर से देगा, फिर भी 30 गुना और देगा। मतलब आपको बहुत आयत से देगा। और हमने ये भी वचन सुना है कि ऐसा देगा कि आपके घर में कोई जगह नहीं बचेगी कि वहां पर आप रख सके। मतलब हर जगह भरा हुआ है ना। पर देंगे क्यों, ये मेरा वचन नहीं है। हाँ, पर आज का सिचुएशन में प्रभु बात कर रहे हैं। देंगे क्यों? क्यों देना है? क्यों देना है? क्यों देना है? कोई बोल सकता है? मैं पहले सोचती थी 100 रुपया देगा तो 100 गुना कितना होता है? 10,000 मिलेगा। 10,000 देगा तो उसका 100 गुना कितना होगा? कितना होगा? नहीं बाबा, 10,000 का 100 गुना कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 1 लाख। हाँ, 1 लाख होगा। बराबर है? नहीं है। 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। 10 लाख। 10 लाख देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये डीलिंग कितना अच्छा है। 10,000 दो, 10 लाख मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। गॉड ओरेकल बहुत अच्छा बोलती है। मालूम है क्या? इसीलिए वो फाइनेंस में नहीं किया, वो बोलती है अनलिमिटेड। गॉड विल गिव अनलिमिटेड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम देते हैं? इसका तो कोई आंसर दो। क्यों देते हैं? परमेश्वर के मंदिर में क्यों दिया जाता है? बोलो, क्या बोलेंगे? अभी तो ऑफरिंग भी नहीं लेता है पास्टर, अभी तो कुछ नहीं है, तो हमें कैसे मालूम क्या देना है? हमारे प्रेम से हम देते हैं। वो प्रेम से देते हैं, पर क्यों? प्रेम से हम देते हैं, पर क्यों देते हैं? ताकि उसमें हम बने रहें। ओके, हितेश बोलता है जिधर खजाना उधर हम, जिधर खजाना उधर हमारा मन। मतलब हम बने रहे। ग्रेटिट्यूड। ओके, हम थैंक्स गिविंग देते हैं। यस। और क्या? जॉय ने बहुत बड़ी गलती की है। इधर ऑफरिंग का बैग रखा ही नहीं है। मेरा बस चले तो मैं जरूर रखूं ऑफरिंग बैग, और वो भी इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा। ड्रम रखेंगे, ड्रम। हाँ, जिसमें क्यों बड़ा? जॉय आंसर दे रहे हैं। क्यों देना चाहिए? डूब जाए। वही मुझे बोलना था, वो बोल दिया। जिसमें हम खुद डूब जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों देना चाहिए मालूम है? कि परमेश्वर के घर में कोई गटी नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमें देना चाहिए अर्पण? कि परमेश्वर के घर में कोई भी गटी नहीं हो, क्योंकि ये दुनिया का है ना। पर फिर भी आप देते ही नहीं है परमेश्वर को। आपको मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप देते होते ना तो इधर इंटरप्रेटर की कमी नहीं होती थी। अगर आप देते थे ना तो ये कीबोर्ड ऐसा खाली नहीं पड़ा होता था। अगर आप देते थे ना तो वीडियो एडिट का काम खाली नहीं पड़ा होता था। अगर आप देते थे ना तो इधर बहुत सारे आराधक होते थे। अगर आप देते थे ना, सिर्फ आपकी कलाएं, आपका पैसा मैं नहीं मांग रही। इसीलिए मैंने बोला मैं छोटा बैग नहीं रखेगी, बड़ा बैग जिसमें आप भी समा जाए। प्रेज द लॉर्ड। और रितेश ने तो बड़ी बात बोल दी, ड्रम रखेंगे। खुद ही डूब जाए। खुद ही डूब जाए। सच में ऐसा होना चाहिए। कितने गरीब है हम, है ना, कि हम हमारे बच्चों को दे नहीं सकते जो काम करे कलीसिया के लिए। कितने गरीब है। वो बोलता है ना, जिसको औलाद नहीं वो ब्लेसेड है। वचन कहता है। क्यों? क्यों बोलो?
ऐसी परिस्थिति है आज के मंदिर में। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही बुरी बात है कि हम अपने बच्चों को दे नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे पास जो है वो दे नहीं पाते। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है आपके बच्चों से। आपको खुद को टैलेंट्स है, आप खुद कर सकते हैं प्रभु के घर के लिए बहुत सारी चीजें, पर कर नहीं पाते, है ना, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं। नो डाउट आप बहुत व्यस्त हैं, नो डाउट आप बहुत बिजी हैं, हर एक काम करता है, हर एक बहुत तकलीफों से गुजर रहा है, हर एक के घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। और मुझे मालूम है बहुत हद तक, शायद 90% तो मालूम है, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं, है ना, आप जरूर दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे कि आप अपने आप को बो सके परमेश्वर के मंदिर के लिए। परमेश्वर का मंदिर हिल नहीं जाए, उसके लिए खंभा बन सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आप में ये सब क्षमताएं प्रभु ने रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बहुत थोड़ा है ना, कब तक ये मैं मांगते रहेगी आपसे, बहुत थोड़ा टाइम, बहुत ही थोड़ा टाइम है, ठीक है। तभी भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम चलते रहेंगे और प्रभु हमें मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर के घर में पत्थर भी काम करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर आप पत्थर मत बनिए, पत्थर काम करने लगेंगे पर आप पत्थर मत बनिए। आप काम कीजिए प्रभु के लिए। प्रभु आपके एक काम को भी रख के नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं। शायद आप हिसाब नहीं रखते होंगे, वो बहुत अच्छा हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। वो आपको दबाकर, हिलाकर, उमड़ता हुआ, बहते हुए ऐसा देगा कि आपके घर में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जो खाली होगा रखने के लिए। ये आपके डायरीज में, दिलो दिमाग में, आपके दीवारों पे लिख कर रखो, वो आपका एक चीज भी रख के नहीं लेगा। ये जो आप समय दे रहे हैं ना प्रभु को, वो भी आपका रख के नहीं लेगा। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो ऐसा बोलते हैं, सिर्फ मुझे 1 महीना मिल जाए, मुझे 1 हफ्ता मिल जाए, 1 दिन मिल जाए। ऐसे लोगों को मैंने मेरे इस छोटे से जीवन में बहुत अच्छी तरह से देखा है, जिनको मिल नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन को बहुतायत से बढ़ाया है ना। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और जो कुछ आप कर सकते हैं प्रभु के घर के लिए जरूर कीजिए, जरूर मतलब जरूर कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप अपने बच्चों को बोइए, किधर बोइए मालूम है? परमेश्वर के घर में। प्रभु आपके बच्चों को बहुतायत से आशीष देगा, अद्भुत रीति से। सबके पास बच्चे हैं, जवान बच्चे, है ना, कब काम आएंगे? प्रभु के घर के लिए कब काम आएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपके घर में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक आपको आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। वेरी फ्यू नो अबाउट जॉन स्टेफन एक्वेरीज फ्रॉम तंजानिया। बहुत सारे लोग हैं जो जॉन स्टेफन एक्वेरीज को, जो तंजानिया से था, ही पार्टिसिपेटेड इन 1968 इन ओलंपिक्स मैराथन। उसने क्या किया था? मैराथन मतलब दौड़ जो थी, उसमें 1968 में मतलब 1968 में उसने भाग लिया था। उसमें वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था, ही वॉज नॉट गोल्ड मेडलिस्ट, न उसे कोई अवार्ड मिला था, बट हिज नेम वॉज नॉट, इवन हिज नेम वॉज नॉट ऑन द टॉप लिस्ट।
ना ही उसका नाम टॉप लिस्ट में था, बट देन आल्सो ही वाज द वन हु अट्रैक्टेड एवरीवन इन द मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स। पर वो ऐसा इंसान था जिसने मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक्स हुए थे हर एक का ध्यान आकर्षित किया था। आपको मालूम है क्यों? न वो गोल्ड मेडलिस्ट था, मीन्स फर्स्ट भी नहीं था, न टॉप 3 रैंक्स में था, न टॉप 10 रैंक्स में था, किसी में भी नहीं था। बट देन आल्सो उसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को मैक्सिको में आकर्षित किया। क्यों मालूम है? आज हम इस इंसान से सीखेंगे क्यों। When everyone began running in the marathon race, he also ran as he was representing Tanzania. तंजानिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए जैसे बहुत सारे दौड़े ये भी दौड़ पड़ा। दौड़ रहा था। ऐसा हुआ कि उसने कंट्रोल खो दिया और गिर गया। ब्लड बह रहा था, बहुत सारा ब्लड बह रहा था। Blood was flowing from his wounds on his legs. He was deeply wounded and was in severe pain. बहुत सारे जख्म हो गए इसके टांग में और बहुत दर्द होने लगा और बहुत ब्लड बहने लगा। बहुत पीड़ा में था, बहुत थक गया वो। He lost lot of blood. बहुत सारे लहू उसमें से बह गया। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहे थे और सब बोल रहे थे गिव अप, कम आउट, बाहर निकला, बाहर छोड़ दे, रेस को छोड़ दे। बट ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया। ही नेवर लॉस्ट हिज हार्ट, उसने अपने हृदय को खो न दिया एंड इवेंचुअली फिनिश्ड द रेस। आखिर में उसने क्या किया? रेस को खत्म, दौड़ को खत्म कर दिया था। वो दौड़ में दौड़ रहा था, उस दौड़ को, उस पीड़ा में, उस असहनीय परिस्थिति में, ब्लड बह रहा था, उसमें उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आखिर पूरा किया उस दौड़ को। ही केम टू द फिनिशिंग लाइन, आखिर में वो अंत की जो फिनिशिंग लाइन थी वहां तक पहुंच गया। कभी पहुंचा मालूम है? The last runner had finished the race 1 hour before him. मतलब आखिरी जो दौड़ने वाला था 1 घंटा पहले उस दौड़ को खत्म किया, उसके बाद उसने फिनिश किया। मतलब सब चले गए, आखिर में 1 घंटा और लगाकर उस लाइन तक उसने फिनिश किया। और बहुत सारे स्पेक्टेटर्स, मतलब जो ऑडियंस थे, देख रहे थे और कुछ चले भी गए और कुछ आके उससे पूछने लगे कि हाउ आर यू, हाउ इज योर पेन। दे वर इंक्वायरिंग, वो पूछ रहे थे कैसा है बाबा, और तूने ये फिनिश क्यों किया, यहाँ तक क्यों आया? तू जान गया ना तू हार गया है, तो वहां तक क्यों गया? इतना तकलीफ उठा के इन जख्मों को लेके, इन वुंड्स को लेके वहां तक क्यों गया? They asked him why he never quit the race even though he was suffering from pain. पूछा कि भाई तूने क्यों नहीं छोड़ दिया, क्विट क्यों नहीं किया? हम बहुत सारे बार क्विट कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को क्विट मीन्स छोड़ देते हैं, है ना? बहुत सारी बातों को हम छोड़ देते हैं, बोलते हमसे नहीं होगा, हम कर नहीं सकते, है ना? He was suffering from pain. Then also he continued the race. Why you did so? ऐसा उससे पूछते हैं, बाबा तुझे इतनी पीड़ा थी, फिर तू क्यों कंटिन्यू किया? His answer made him immortal one. अविनाशी बन गया। Not, उसने क्या आंसर दिया मालूम है? My country did not send me 5,000 miles to Mexico City not to start the race but to finish the race. क्यों भेजा उसने? उसे क्या बोला मालूम है? मेरे कंट्री ने, मेरे देश ने मुझे 500 माइल्स दूर, 500 माइल्स दूर इसलिए नहीं भेजा कि मैं सिर्फ रेस को स्टार्ट करूं, दौड़ को स्टार्ट करूं, पर क्या करूं?
दौड़ को पूरा करूं। क्या करूं? दौड़ को पूरा करूं। समझा इसका मतलब? वो बोलता है मुझे मेरे देश ने इसलिए यहाँ पर नहीं भेजा, इतना दूर 5000 माइल्स दूर इसलिए नहीं भेजा कि मैं सिर्फ दौड़ को शुरू करूं, पर इसलिए भेजा कि मैं दौड़ को फिनिश करूं, खत्म करूं। क्या हुआ मालूम है? नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर हैड मोर ऑफ his pictures than the medal winners. जॉन स्टेफन का हर जगह फोटो, हर जगह न्यूज़पेपर में फोटो, जबकि वो मेडल विनर भी नहीं था। जो बेचारा फर्स्ट आया उसके इतने फोटोज नहीं थे जितना इतना इसका जॉन स्टेफन का था। दिस सेम माइंडसेट शुड बी इन अस। Hebrew 12 describes the Christian life as a race that involves endurance, discipline and correction. ये सेम माइंडसेट अगर हम में हो जाए तो कितना अद्भुत है। किसका माइंडसेट? जैसा जॉन स्टेफन, क्या किया उसने? दौड़ को दौड़ते रहा, जारी रखा। बहुत पेन था, बहुत पीड़ा थी, ब्लड बह रहा था, बह रहा था, बह रहा था। शायद वो मर भी सकता था। ब्लड ज्यादा लॉस हो गया तो मर भी सकता है इंसान, पर उसने क्या किया? अंत तक उस दौड़ को जारी रखा। एंड हिब्रू 12, इब्रानी 12 हमें बहुत अच्छा सिखाता है क्रिस्ती जीवन। क्रिस्ती जीवन क्या है? एक रेस है, दौड़ है। उसमें एंड्योरेंस होता है, मतलब धीरज होता है, डिसिप्लिन अनुशासन होता है, एंड करेक्शन सुधार होता है। अगर आपको समय मिले तो आप प्लीज जरूर पढ़िए हिब्रू 12th चैप्टर, इब्रानी 12 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आस्क योरसेल्फ, वेयर एम आई? क्या मैं ट्रैक में है? क्या मैं उसी ट्रैक में दौड़ रहा हूं जिधर मुझे रखा गया है, कि मैं थोड़ा ट्रैक से साइड में हो गया हूं, या और साइड में आया हूं, या और साइड में आया हूं, या उस पार चला गया हूं? I am on the right track of race or not? Ask yourself. Everyone, सब पूछिए कि मैं कहाँ पर हूँ? दौड़ के उसी लाइन में हूँ? आपको मालूम है दौड़ते हैं तो लाइन के अंदर दौड़ते हैं, मालूम है ना, ट्रैक्स होते हैं। क्या मैं उसी ट्रैक में दौड़ रहा हूँ जहाँ पर मुझे रखा गया है? नो। अभी हम यीशु की तरफ देख सकते हैं। When we look at Jesus, he came to fulfill his God's will. जब यीशु की तरफ देखते हैं तो क्या मालूम पड़ता है? वो क्यों आया? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, टू सेव अस फ्रॉम पेनल्टी ऑफ डेथ। हमें मृत्यु की सजा से बचाने के लिए। इन एगनी जीसस प्रेड। आप सबको मालूम है ये प्रार्थना, ओ माय फादर। पीड़ा में क्या प्रार्थना किया यीशु ने? ओ माय फादर, if it is not possible, let this cup pass from me. Matthew 26:39, मत्ती 26 उसका 39 वचन। In agony, Jesus prayed by saying, "Oh my Father, if it is not possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." कोई पढ़ सकता है हिंदी में तो पढ़िए प्लीज। मत्ती 26वां अध्याय 39 वचन। जल्दी जल्दी खोलिए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। और इसमें वो कहता है कि, फिर से हम पढ़ेंगे एक बार। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता,
यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। Yes. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. अगर नहीं तो जैसा मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। He was knowing the plan of God. वो क्या परमेश्वर की योजना को जानता था। He could have, वो सब जानता था ना। वो ये भी जानता था कि गत्समनी के बगीचे में मुझे पकड़ा जाएगा, वो जानता था। तो he could have run away from that place. वो जा सकता था, भाग सकता था उस जगह से, but he gave himself to the will of God to finish the race. पर उसने क्या किया? अपने आप को इस दौड़ में जो परमेश्वर ने उसके लिए दौड़ रखी थी उसको पूरा करने के लिए दे दिया, है ना। वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको मालूम था इसी बगीचे में वो पकड़ेंगे आके मुझे, तो और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा था, ये प्याला मुझसे क्या कर, दूर कर, अगर नहीं तो भी तेरी इच्छा पूरी हो। सब जानता था, फिर भी वो वहां से भागा नहीं, क्योंकि उसे उस दौड़ में भागना था जो दौड़ परमेश्वर ने उसके लिए रच के रखी थी। परमेश्वर ने जो मकसद के साथ उसे पृथ्वी पर भेजा उसी के लिए वो रुका रहा। By his bloodshed we have been brought to God and restored to the relationship. और सिर्फ उसका ही लहू है जिसकी वजह से हम जो परमेश्वर से इतने दूर चले गए, हमें उसने क्या किया, परमेश्वर के साथ नजदीक लाया, फिर से वो रिश्ता बनाया, और जो उसने रिकंसाइल किया, हमें उसके साथ एक किया। His power is fueled in us through the body of his flesh through his death. उसका जो पावर है, उसका जो सामर्थ्य हमारे अंदर फ्यूल किया गया, मतलब जैसे फ्यूल किया गया, मतलब फ्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे पेट्रोल भरते हैं ना तो गाड़ी चलती है। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमें नहीं मिलता था प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, तो हम चल नहीं सकते थे, हम काबिल नहीं थे इस दौड़ को पूरा करने के लिए। हम बोलते हैं हम बहुत बोल्ड हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमें नहीं मिला होता फ्यूल के जैसा, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। He reconciled us to God. उसने और क्या किया, प्रभु परमेश्वर के साथ हमें एक किया by completing his race, उसके दौड़ को पूरा करके। Praise the Lord। ये सही टाइम चल रहा है, और आपने बहुतों ने बुधवार का वचन भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप जरूर देखिए वीडियो, और प्लीज बुधवार को, वेडनेसडे को ज्वाइन होइए, सब काम बाजू में रखकर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अद्भुत वचन था प्रभु का, और हम उसी दौर में दौड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे है, तो हम उसी दौड़ में हैं। तो परमेश्वर ने वचन भी आज ऐसा ही दिया है। क्या किया, क्यों आया यीशु मसीह मालूम है, सिर्फ हमारे लिए और कोई कुछ भी नहीं, हमारे उद्धार के लिए, हमें फिर से परमेश्वर के साथ एक करने के लिए। जो बहुत बड़ी गैप हो गई थी, उस गैप को भरने के लिए उसने क्या किया, जो प्याला वो पी नहीं सकता था, फिर भी उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। उसे सब मालूम था, फिर भी वहां से भागा नहीं, वो उस दौड़ को जारी रखा, वो आगे बढ़ा। क्यों मालूम है, हमें फिर से रिस्टोर करने के लिए परमेश्वर के साथ, फिर से हमें हमारे अंदर वो फ्यूल भरने के लिए, फिर से हमें रिकंसाइल मतलब उसके साथ, परमेश्वर के साथ एक करने के लिए। 2 Corinthians 5th chapter 21st verse, दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5वां अध्याय 21वां वचन। For our sake he made Christ to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become the righteousness of God। हम जल्दी जल्दी वचन को खोलें। मालूम है क्यों लेट होता है, क्योंकि हम मोबाइल में पढ़ते हैं, इसीलिए वचन को खोल नहीं पाते हैं बाइबल में। जो पाप से अज्ञात था
उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Praise the Lord। जो पाप जानता न था, the one who knew not sin, he became sin। वो हमारे लिए पाप बन गया, जो पाप को जानता ही न था। क्यों मालूम है क्यों बना पाप? That we might become the righteousness of God। कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। हमारी धार्मिकता गंदी चिंदी के समान है ना। हमारे अच्छे अच्छे काम किसी काम के नहीं है, किसी के योग्य नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि in and through him we might become the righteousness of God। कि उसके अंदर उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। He bore our sins on the cross and endured the penalty that we deserved। उसने क्या किया, हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया कि जो हमारे ऊपर सजा थी उसने वो क्रूस पर ले ली, जिसके लिए हम अधिकारी थे, जिसका मतलब बोलते ना योग्यता, हमारी योग्यता थी उस सजा को पाने के लिए, पर उसने वो ले लिया। क्योंकि हम एक खरोच तो आए, हमें थोड़ा तो ब्लड बहे। देखो बच्चे को हमारे लगता है ओ ओरेकल क्या हो गया क्या हो गया, हम दौड़ के जाते हैं, उसको फटाफट साफ करते हैं, उसको अच्छे से कुछ तो लगाते हैं कि वो ठीक हो जाए। सोचो उसने हमारे लिए क्या क्या सहा। वो जो पाप हम ले ही नहीं सकते, हमारा एक जन का पाप उसने हर एक का, इस पूरे जगत का ले लिया। He bore our sins on the cross and endured the penalty that we deserved, because he was knowing that race we can't finish without sacrifice। क्यों किया मालूम है? उसने पाप को अपने ऊपर ले लिया। जो हमारे ऊपर पाप का वेतन क्या होता है? मरण। उसने अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो दौड़ को जिसके लिए हम है उसको हम पूरा कर ही नहीं सकते बिना बलिदान के। तो बलिदान कौन बनेगा? सब नहीं, सिर्फ एक। और वो कौन बना? यीशु मसीह। और वो सैक्रिफाइस भी कौन सा होना चाहिए? होली सैक्रिफाइस। हम में कोई पवित्रता नहीं है तो हमारा तो बलिदान किसी काम का नहीं है, लेकिन उसने हम सबों के लिए वो एक बलिदान हुआ। द होली सैक्रिफाइस वाज जीसस। और वो पवित्र बलिदान कौन था? खुद यीशु मसीह। मेरी टाइम बहुतों बार ऐसा लगता है कि नहीं प्रभु नहीं, अब हम सह नहीं सकते, है ना। बहुत बार हम थक जाते हैं परिस्थितियों से, हमारे चारों ओर जो चल रहा है हमारे साथ, या घर की परिस्थिति, हमारे बच्चों में परिस्थितियां, या ऐसे बहुत सारे बातें हमारे अंदर जो चलती है, जो तूफान, जो स्टॉर्म्स हमारे अंदर होते हैं, हम थक जाते हैं और हम कहते हैं नो लॉर्ड इनफ, वी कांट बेयर इट। नहीं प्रभु नहीं, हम सह नहीं सकते। एक कहानी है छोटी सी, वो ऐसा है, इट इज लाइक अ मैन हु टुक होम अ कुकून। एक कुकून होता है, मालूम है आपको? कुकून सुना है? हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसको। कुकून जिसमें से कीड़ा निकलता है और बटरफ्लाई बन जाता है। अभी कैटरपिलर निकलता है और क्या बोलता है? बनता है बटरफ्लाई। तो एक बहुत ही उत्सुक मनुष्य था, उसने क्या किया? कुकून को लिया, बहुत ही सुरक्षा से, सलामती से उसको रखा और देखने लगा कि कैसे उसमें से मॉथ जो है बाहर निकलता है, मतलब कैटरपिलर बाहर निकलता है। ठीक है,
So he was watching the moth emergence. As the moth struggled to get through tiny opening, जैसे ही वो moth छोटा कीड़ा उसमें से छोटी सी ओपनिंग होती है उसमें से बाहर निकलता है, तो जैसे वो निकल रहा था, वो छोटी सी ओपनिंग में से जो खुला हुआ था उसमें से निकल रहा था, तो वो मनुष्य से देखा नहीं गया उसकी पीड़ा, क्योंकि वो ओपनिंग बहुत छोटी थी। तो वो बेचारा उसे मदद करने गया और घर में ढूंढ के एक सीजर लेके आया और क्या किया, थोड़ी ओपनिंग को कट किया, थोड़ा बड़ा किया, मदद किया। क्या किया उसने? मदद किया। और क्या हो गया, थोड़ा वो ओपनिंग बड़ा हो गया और आराम से जो मॉथ था वो बाहर आराम से निकल आया। तो बहुत खुश हो गया, मैंने मदद किया। पर क्या हो गया मालूम है? बट इट्स विंग्स वर श्रिवेल्ड, मीन्स उसके जो पंख थे ना वो छोटे ही रह गए। मतलब वो कंडीशन जो थी ड्राई हो गई उसके लिए। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कुछ ऐसा है, द स्ट्रगल थ्रू द नैरो ओपनिंग is God's way to force fluid from its body into its wing that it can fly. वो जो छोटी ओपनिंग जो होती है ना, वो गॉड ने इसलिए रखी है छोटी, नैरो, कि फोर्स के साथ जो उसके अंदर फ्लूइड है वो उसके पंखों में चले जाए, उसके विंग्स में चली जाए। वो पानी जैसी चीज होती है, वो उसके विंग्स में चली जाए और वो विंग्स जो है वो बढ़ने लगे और फैल जाए और वो उड़ सके। पर इस महाशय ने क्या किया, उस ओपनिंग को थोड़ा बड़ा कर दिया और बड़ा करके क्या किया, वो फोर्स लगने ही नहीं दिया ना। अगर फोर्स लगता तो वो फ्लूइड उसके पंखों में जाता था, तो वो पंख बढ़ते थे, वो उड़ सकता था। So allow God's will to be fulfilled in your life that makes us able to fly. इसी प्रकार से अपने आप में, अपने अंदर, आपके बच्चों में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दो, कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नैरो ओपनिंग से हम क्यों न गुजरे। कठिनाई जरूर होगी, कश्मकश बहुत होगी, शायद हम जख्मी भी हो सकते हैं, वुंड्स भी हो सकते हैं, हर्ट्स भी हो सकते हैं, पर हम ओपनिंग से ऐसे निकले कि हमारे पंखों में वो फ्लूइड आ जाए और हम उड़ने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सिर्फ कभी होता है मालूम है, व्हेन वी गिव आवरसेल्फ इन द हैंड्स विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो इच्छा है ना, उसमें अपनी आंख को जब हम दे देते हैं तब वो जरूर पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Sometimes people may ask you why you are going in so many trials and troubles, then also you are following Jesus. शायद पूछ सकते हैं ना आपसे, जैसे वो जॉन स्टेफन से पूछा, भाई तूने दौड़ को बंद क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं निकला ट्रैक से। तो लोग आपसे भी पूछ सकते हैं, आप इतने कश्मकश में जाते हैं, इतने तकलीफों को सहते हैं, तो आप इस दौड़ को बंद क्यों नहीं करते, यीशु के पीछे जाना बंद क्यों नहीं करते। आपको मालूम है क्या आपका जवाब होना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? मुझे मालूम है सब अपने कलीसिया में बहुत अद्भुत योद्धा रखे हैं परमेश्वर ने। सच में वो युद्ध को लड़ते हैं, अपने दौड़ को दौड़ते हैं, और मुझे अच्छे से मालूम है हर एक करता है, और सच में वो दौड़ को दौड़ता है। क्यों मालूम? मुझे मालूम है कलीसिया में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक यही आंसर होगा। कैसा? My God did not send me to this world to start the race but to finish the race. क्या जवाब है आपका मालूम है? समझा आपको जो मैंने बोला? आपका आंसर यही है कि मुझे परमेश्वर ने इस जगत में क्यों भेजा मालूम है? इतना दूर, ये तो 5000
माइल्स से आया था, तंजानिया से मैक्सिको। अगर आप काउंट करें, स्वर्ग से पृथ्वी पर आपको भेजा है। हम गाते हैं ना, स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? वो माइल्स में काउंट नहीं होता है, वो लाइट ईयर्स में काउंट होता है डिस्टेंस। तो वो क्यों भेजा है आपको? परमेश्वर की इच्छा दौड़ को सिर्फ चालू करने के लिए नहीं, पर पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? पूरा करने। और ये परमेश्वर कुछ अलग है, सिर्फ पूरा ही नहीं बोलता विक्टोरियसली पूरा करने का, है ना। समटाइम्स द स्ट्रगल इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड इंटेंड्स अस टू बी। जैसा परमेश्वर को चाहिए ना, जैसे उसको चाहिए, जो इरादा है उसका, उसी तरह से वो हमें रखता है वो ट्रैक में, कि इसको क्या होना चाहिए, कैसे वो इस ओपनिंग से बाहर निकल सकता है, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, कैसा वो बाहर निकल सकता है इससे, वो सब उसको मालूम है। एंड वी एक्सपीरियंस गॉड्स स्ट्रेंथ इन द स्ट्रेन ऑफ आवर स्ट्रगल। और हमारे कश्मकश में किसका हाथ होता है मालूम है? हम सस्टेन क्यों कर पाते हैं मालूम है? हम चल क्यों पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत हाथ हमारे ऊपर होता है। हालेलुया। सो व्हाई आर यू वरिंग? आप क्यों चिंता करते हैं? हिब्रू 12:1, इब्रानी 12 अध्याय 1 वचन। रोकने की बहुत सारी वस्तुएं हैं, आपको अच्छे से मालूम है। आपको ऐसे ऐसे काम आ जाएंगे कि आप आ ही नहीं सकते, प्रभु के उस प्लान को पूरा कर ही नहीं सकते, परमेश्वर के योजना में चल ही नहीं सकते, और उलझाने वाले पाप दूर करके आपको मालूम है वो कुकुन में से निकलने के लिए कितनी उलझन थी उसको, थी ना? आप बताइए, बराबर है ना? पर अगर वो उलझन से जाएगा ही नहीं, अगर उसको ब्रेक करेगा ही नहीं खुद, तो वो कैसे उड़ पाएगा? वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। परमेश्वर ने दौड़ रखी है आपके लिए, पर आप इतना धीरज से मत दौड़िए कि पूरा करने में इतना समय लग जाए कि दरवाजा ही बंद हो जाए। प्लीज ऐसा मत दौड़िए, ट्रैक को छोड़िए मत। जो फेथ विश्वास के हीरोज होते हैं वो देखने वाले नहीं होते हैं। अभी हम देख सकते हैं बहुत सारे हीरोज हैं हमारे बाइबल में, उनके जीवन को हम देखेंगे जब, तो उन्होंने क्या किया है? बहुत कुछ किया है। आप देखिए पतरस का जीवन, बहुत बड़े बलिदान। पौलुस का जीवन देखो आप, कैसे वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला। उसके हर एक शिष्यक की लाइफ को आप देखिए, जो भी हीरोज है बाइबल के, उन्होंने क्या किया है? एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है और सक्सेसफुली ओवरकम किए हर एक इन बातों को। वो भी इंसान थे, उनको भी बहुत सारी रुकावटें थी, बट दे केम आउट फ्रॉम कुकून एंड बटरफ्लाई के तरह वो क्या होने लगे? उड़ने लगे प्रभु में। जो कुछ हमारे प्रभु में उन्नति को रुकावट है, उसे क्या करना चाहिए? बाजू में हटा देना चाहिए। इस दौड़ को हमें क्या करना चाहिए? जो हमें दी गई है, जिस ट्रैक में प्रभु ने हमें रखा है, उसे क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। 12:2 The runner must not look to others, but must keep his eyes fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. दूसरे की तरफ नहीं देखना है। किसकी तरफ देखना है? दौड़ने वाले को सिर्फ प्रभु यीशु की ओर रखना है, उसकी आंखों को लगाना है, जो ऑथर है, रचने वाला है और उसको पूरा करने वाला है। ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ एंड इवन आवर रेस, जो हमारे रेस को बनाए रखा है, जिसने हमें उस रेस में रखा है, उसको हमें पूरा करने में वही मदद करेगा और कोई नहीं। किधर भी नहीं देखना है, सिर्फ किसकी ओर देखना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। 12:3 जिसने क्या किया? क्रूस का दुख सहा हमारे लिए, वो जो खुद रचयिता है, जो खुद ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर रेस है, जिसने हमारे दौड़ को रचने वाला और पूरा करने वाला है, वो क्या किया?
दुख सहा, हमारे क्रूस लिए का। दुख सहा, वो भी क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और कहाँ बैठा है अभी? परमेश्वर के दाहिनी दाहिनी और सिंहासन में। और आपको कहाँ पर बिठाएगा? वो भी दाहिनी ओर। उधर ही, उसके बाजू में बिठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। Many a times we are thinking that God don't remember me. हम सोचते हैं ना, क्या प्रभु तू मुझे भूल गया क्या? बहुतों बार थक जाते हैं, क्या प्रभु काम नहीं कर रहा, मेरे लिए सुनता नहीं, मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं, क्या वो मुझे भूल गया क्या? बट इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ही वॉन्ट्स दैट वी मस्ट फ्लाई लाइक इगलेट्स। वो क्या चाहता है कि हम उक्काब के बच्चों जैसा क्या करें? उड़ने लगे। मालूम है ना आपको उक्काब के और माँ की कहानी? वो क्या करती है? उठाती है अपने बच्चों को, ऐसा फेंकती है हवा में, और उनको उड़ना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं? बेचारे नीचे गिरने लगते हैं। तो वो क्या करता है? अपने पंखों को फैलाती है और वो उसके पंखों पर आकर गिरते हैं। फिर फेंकती है उक्काब माँ, फिर फेंकती है, वो फिर आके क्या करते हैं? उसके पंखों पर गिरते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पैरों पर क्यों उठाया? कि हमें चोट नहीं। लेकिन वो घोंसले को हिलाकर उसने क्या किया? अपने बच्चों को ऐसा फेंका। कहाँ पर? हवा में। क्या वो दुश्मन है क्या बच्चों का? नहीं है। क्यों मालूम ऐसा करती है उकाब माँ? कि वो उड़ना सीखे। तो क्या हमारा परमेश्वर नहीं चाहेगा कि उसकी रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना यानी इंसान, इगलेट से भी बढ़कर हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है। और इसमें मुझे 2 उदाहरण बहुत अच्छे से याद आए। डैनियल इतना अथॉरिटी में था, राजा उसका दोस्त था, फ्रेंड ऑफ किंग, है ना? डैनियल वाज फ्रेंड ऑफ किंग। तो दोस्त तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है ना। फिर भी डैनियल को गॉड ने उस दौड़ में रखा। कौन से ट्रैक में रखा? तेरे को लायंस डेन में जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? शेर के गुफा में जाना ही पड़ेगा। शेरों के गुफा में, सिंहों के मांद में, है ना? एक से नहीं, ज्यादा ही थे। वो क्या किया? भाग गया क्या? खड़ा नहीं, पर वो उस ट्रैक में रहा। क्या किया प्रभु ने? सुबह को जब राजा पूरी रात सोया ही नहीं। देखो आप, राजा पूरी रात नहीं सोया। ऐसा हो सकता है क्या? इतना अच्छा बिस्तर, इतना सब कुछ अच्छा फैसिलिटी, पर सो नहीं पाया। और अर्ली मॉर्निंग, भोर के वक्त वो गया और देखा तो वो क्या था? दौड़ में अव्वल नंबर आया। कौन? डैनियल। प्रेज द लॉर्ड। सेम अनदर एग्जांपल फ्रॉम सेम बुक। शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या किया? आग में डाल। They finished their race in 7-fold fire. क्या किया उन्होंने? अपने दौड़ को जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, प्लान बना के, उस दौड़ में मस्त एसी में यीशु के साथ बैठ के, बाहर से तो 7-fold भट्टी थी, लेकिन अंदर सुपर एसी थी जो आपको कहीं मिल नहीं सकती है। वहां से बाहर निकल के आए। प्रेज द लॉर्ड। विक्टोरियसली, विजयशाली होकर वो उस 7-fold फायर में से बाल बांका, बोलते हैं ना, बाल बांका भी नहीं हुआ उनका। कितना अच्छा कहावत है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु ने उनको उस दौड़ में से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सच में अद्भुत खुदा है। सो डोंट लूज योर होप।
डोंट बी टायर्ड, थक मत जाओ, अपने आशा को मत खो। वो कहता है तेरी आशा जरूर पूरी होगी। ही विल फुलफिल योर होप, ही इज विथ यू। वो आपके साथ है। जो दौड़ परमेश्वर ने आपके लिए रची है उसमें दौड़ो, वो ट्रैक में चलो, उस ट्रैक में थक मत जाओ, गिर मत जाओ, जख्मी क्यों ना हो जाओ, पर दौड़ो। When our life is short, we have to mature more. जीवन छोटा क्यों ना हो, हमें प्रौढ़ बनना है। We should not quit the race at the last moment. अभी मैंने ये क्यों लिखा लास्ट मोमेंट मालूम है? क्योंकि हर बार हम सुनते हैं ये अंत समय है। क्या है ये? अंत समय। अभी तो बहुत टफ टग ऑफ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है ओरेकल जब फर्स्ट टाइम क्या खेलती थी, स्केटिंग खेलने चली थी और मैं अकेला उसको लेके गई थी नासिक में। और वो 3.5 साल की होगी मुझे लगता है, पर उसके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे उसके सामने वो बहुत छोटी लग रही थी और वो सब टॉल थे। तो उसके पहले जो रेस हुआ स्केटिंग का, तो उसमें इसके साथ एक लड़की जो थी वो फर्स्ट आई, और वो इसमें और उसमें बहुत कंपटीशन था, और वो छोटे में गई और ये बड़े बच्चों में गई 3.5 साल की होके। ठीक है, वो ऐसा मैं उठाया उसको, मैं बोला क्या हुआ बेटा, वाई आर क्राइंग? वो बोलने लगी आई वॉन्ट टू कम फर्स्ट। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, गॉड इज विथ यू, यू विल कम फर्स्ट। आप जब उसका पोज देखेंगे ना, अभी भी वीडियो है मेरे पास, तभी इतना नहीं था फैसिलिटी, लेकिन फिर भी छोटा सा मोबाइल से जो कुछ मैंने निकाल सका वो छोटा सा क्लिप है मेरे पास। उसका पोज देखने का अद्भुत, और वो ऐसा खेली, मुझे लगता है उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, बड़े बड़े जायंट्स थे उसके आजू बाजू में, पर वो जो खेली ना वो फर्स्ट आई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु हमसे चाहता है। आपके बाजू में इधर उधर बहुत बड़े जायंट्स होंगे, बहुत बड़े मिरेकल वर्कर होंगे, बहुत बड़ी भविष्यवाणी बोलने वाले होंगे, बहुत कुछ करने वाले होंगे, बहुत बड़े बड़े वचन बोलने वाले होंगे। डोंट लूज योर होप, यू विल कम फर्स्ट, श्योरली यू विल कम फर्स्ट। जरूर आप पहला आएंगे, जरूर। डेज आर वेरी इविल बट डोंट गिव अप। दिन बहुत बुरे हैं पर आप छोड़ मत दो। द डे ऑफ द लॉर्ड इज वेरी नियर, कीप रनिंग। प्रभु का दिन बहुत नजदीक है, दौड़ते रहो। और सच में दिन बहुत बुरे हैं, प्रभु का दिन नजदीक है। इस दौड़ में दौड़ते रहिए और जरूर हम इस दौड़ को पूरा करेंगे। द पोजीशन वी अचीव डज नॉट मैटर बट फिनिशिंग द रेस इज इम्पोर्टेंट। ओरेकल को फर्स्ट आना था, पर इधर तो ऐसा नहीं है ना। गॉड ने हर एक के लिए उसका मुकुट रखा है कि नहीं? तो पोजीशन डजंट मैटर, द पोजीशन वी अचीव डज नॉट मैटर बट फिनिशिंग द रेस इज इम्पोर्टेंट। रेस फिनिश करना बहुत जरूरी है। और वो जो जॉन स्टेफन था उसने पूरी दौड़ पूरा होने के 1 घंटा बाद फिनिश किया। इधर ऐसा नहीं चलेगा, इधर हमें टाइम पे ही फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। परमेश्वर उनको चाहता है जो इस दौड़ को कामयाबी से पूरा करे। कामयाबी से पूरा करना मतलब उस दरवाजे के अंदर चला जाना और दूल्हे राजा से मिलना। सो नेवर स्टॉप, कभी रुको मत। रन द रेस, दौड़ को दौड़ो। नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ मत दो, उम्मीद मत, मीन्स निराश मत हो जाओ। आपकी पूरी कश्मकश के बाद वो जरूर आपको प्रतिफल देगा। यू विल एंटर इन हिज गेट विथ थैंक्स गिविंग। आप उसके जो वो दरवाजा खोलेगा ना, जब आप उसमें अंदर चले जाएंगे और धन्यवाद देंगे। एंड यू विल सी ही इज वेटिंग फॉर यू विथ हिज आर्म्स ओपन। और आप देखेंगे कि आपका जो दूल्हा है वो आपके लिए बाहें खोले हुए खड़ा है। ही विल गिव यू योर क्राउन ऑफ विक्ट्री। आपको वो विजय का मुकुट देगा
जो आपने इस दौड़ को पूरा करने में हासिल किया। फिनिश योर रेस टिल द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तब तक अपने दौड़ को जारी रखो। गॉड ब्लेस यू एंड बी विथ यू इन रनिंग सच अ रेस। और ऐसी दौड़ को पूरा करने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Maybe many a times you get hurt, maybe you get wounds. हो सकता है ऐसी दौड़ को दौड़ने में आपको तकलीफ आए, आपको जख्मी होना पड़े, पर चिंता मत करो, कभी भी आप उम्मीद को छोड़ मत दो। कीप रनिंग, दौड़ को दौड़ते रहिए। ही इज विथ यू, वो आपके साथ है। श्योरली वी विल रीच अवर डेस्टिनी, और ज़रूर हम अपने मंजिल को पा लेंगे और अपने गोल को, जो हमारे लिए मकसद प्रभु ने रखा है, उसको पा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मकसद क्या है? प्रभु यीशु के पास जाना है ना, उसके साथ उठा लिया जाना। तो वो हमारी मंजिल हम कभी पूरा करेंगे जब हम इस ट्रैक को छोड़ेंगे नहीं, जब हम इस ट्रैक से इधर या उधर नहीं जाएंगे, पर उस ट्रैक में जारी रखेंगे, लगातार चलते रहेंगे और विथ एंड्योरेंस, पेशेंस के साथ ज़रूर हम पूरा कर सकते हैं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ हिम, है ना, हर चीज़ संभव है उसके साथ। तो हम बने रहे इस दौड़ में, जारी रखें, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हम छोड़े नहीं इस दौड़ को, पर हम दौड़ को सही समय पर पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है। जॉय, प्लीज प्रे एंड Father, we thank you, we praise you, Lord. Thank you for your very presence, Lord. And we thank you for your love. We thank you, Father God, for you're the one who speaks with us. Today we pray, O Lord, that let your good spirit will take complete control of us. हम धन्यवाद करते तेरी पवित्र आत्मा हमारा ताबा ले, हम दौड़ को जारी रखें और जो कश्मकश में तूने रखा है उसको हम पूरा कर सके, और तेरी परिपूर्ण इच्छा को जो हमारे लिए है, जो धार्मिक इच्छा जो हमारे लिए है, उसे पूरा कर सके। We thank you for speaking with us, Lord. हम धन्यवाद करते हैं हमसे तूने बातें की। Today we call unto you. आज हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, और हम कहते हैं कि हम तैयार है प्रभु, हमें मदद कर जब हमारे पास कोई सहायता नहीं है। Today we are ready to pour ourselves. आज हम तैयार हैं अपने आप को ढेलने के लिए, अपने आप को देने के लिए, और हम तुझसे वायदा करते हैं कि हम समय को बनाएंगे और हम ऐसा जीवन जिएंगे जिससे तू प्रसन्न हो। हम ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहां तू चाहता है, और हमारे जीवन को देते हैं तुझे प्रसन्न करने के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बना रहा है और नर्क के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। यहाँ पर मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं, तेरे सामर्थ्य, तेरी दया, तेरी ताकत को हम पर मांगते, हम सबों के ऊपर जो हमें ढक सके। तेरे अच्छे आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उनका ताबा ले, यीशु के प्यारे नाम में, Amen. आमीन।